Hello students, welcome to lecture number 14, unit number 4, chemical bonding and molecular structure. As we know that in our last sessions, we continue with our journey regarding to the polarity of the bonds. So in the case of polarity of bonds, we know that not each bond, right? So the descriptions of the nature of the bond between two species is completely ionic or covalent is an ideal case scenario. But in reality, all bonds having some covalent or ionic character in them. So in last sessions, we mostly depended on the covalent bond, and in such a type of covalent bond, there is the characteristics of ionic bond, right? But today, ionic bond having some characteristics, right? So all the covalent bond having some partial ionic characters, and the ionic bonds also have a partial covalent character. Today we discuss about the ionic bond also having a partial covalent character. In last sessions, all the covalent bonds having some partial ionic character, but today our topic is ionic bond also have a partial covalent character. And this partial covalent character of ionic bond was firstly discussed by a Fajans. So they give some type of the rules. So it's called as a Fajans rule. What they give is a Fajans rule. Once again, ionic and covalent bonding, right? These two types of the bonding, they are the two extreme types of the bonding, and almost always the bond forms are intermediate in type. And this is explained in terms of, there are two terms that we have to use in this portion. One is the polarizing power. This polarizing power of what? Polarizing power of the cation. Cation means positive ion, right? Cation means positive ion. And same way, number two is the polarizability of the anion means negative ion. Otherwise, it's also called as a deforming. Polarizability means deforming process, right? And the shape of the ions and the shape of the ions. ठीक है, आज हम क्या यहाँ पे दिखाना चाहते हैं? लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बोला था कि जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है ना, उसमें आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. आज मैं क्या बताना चाहता हूं, आज का पूरा जो लेक्चर्स है वो मेरा इस तरफ है कि जैसे आयोनिक बॉन्ड होते हैं उसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. सो द पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड उसने किसने समझाया था? तो फजान्स ने उसने ये जो लो है विच इज डिस्कस बाय फजान्स रूल, तो फजान्स की वजह से हम यहाँ पे वो समझा रहे हैं. तो फजान्स है ना, तो दो बातों पर ज्यादा वो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है केटाइन और यहाँ पे दिखाया गया है एनायन. इसका मतलब है कि मेरा बॉन्ड तो आयंस है ही, आयोनिक बॉन्ड तो है ही, लेकिन ये जो केटाइन है उसमें पोलराइजिंग पावर होता है. वो पोलराइजिंग क्या है मैं अभी दिखाना चाहता हूं आपको. एंड नंबर टू इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन. Polarizability of the anion, which is called as a deforming process, right? इसको हम कई बार deforming भी बोलते हैं. So the type of bond between A plus and B minus depends on the effect one ion has the another, right? अभी क्या होता है कि the positive ion attracts the electrons on the negative ion, at the same time it repels the nucleus. जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, जैसे मेरे पास है, यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव आयन है, देखिए ये, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक नेगेटिव आयन है, ये भी देख लीजिए आप. तो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव आयंस के साथ क्या करेगा? द पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नेगेटिव आयन. तो ये जो है इसका अट्रैक्ट करेगा, बट एट द सेम टाइम क्या होगा? सो एट द सेम टाइम इट रिपेल्स द न्यूक्लियस. तो यहां से एक न्यूक्लियस का रिपेल, क्योंकि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में तो रिपल्जन होता है. सो दिस डिस्टॉर्टिंग, राइट, और पोलराइजिंग द नेगेटिव आयन, तो उसको जो हो है ना वो पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देगा. देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको अच्छी तरह से दिखाना चाहता हूं. मेरे पास है ना Li+ है, आपको मालूम है Li+ की साइज है ना वो बहुत कम होती है,
और उसके सामने मेरे पास यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है I-, यानी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ लिथियम आयोडाइड की बात कर रहा हूँ। देखिए आप बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे देखना चाहेंगे, यहाँ पे लिथियम क्या है तो कि उसका साइज बिल्कुल छोटा है और आयोडीन का साइज बिल्कुल बड़ा है। ठीक है, आयोडीन को क्या करना है कि अपना जो न्यूक्लियस है और उसने अपना इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आया था उसको भी होल्ड करके रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सो द पॉजिटिव आयंस, ये जो पॉजिटिव आयंस है उसने क्या किया हुआ है, सो द पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नेगेटिव, वो यहां से आयोनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्शन होगा। लेकिन उस तरफ भी क्या हो सकता है, एट द सेम टाइम इट्स रिपेल्स द न्यूक्लियस टू, तो लेकिन वो न्यूक्लियस को क्या होगा, वो ये आयोडीन का न्यूक्लियस से वो दूर जाना चाहेगा, लेकिन उसके जो इलेक्ट्रॉन है ना, देखिए यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन है तो उसको वो अपनी तरफ खींचना चाहेगा, ये अपनी तरफ से खिंचाव ले रहा है यहाँ पे। तो ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका क्या हुआ, आयोडीन का जो शेप था ना वो डिफॉर्मिंग हो गया है। देखिए यहाँ पे उसका शेप थोड़ा वो डिफॉर्मिंग हो गया है और वो लिथियम की तरफ आ रहे हैं। So the same time the negative ion will also polarize the positive ion, तो उसने उसका भी क्या किया हुआ, पोलराइजेशन किया हुआ है। आपको ऐसा लगेगा ना तो आयोडीन ही कुछ ऐसा कर सकता है, आयोडीन भी लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, फिर उसका भी यहाँ पे खींचा होगा। लेकिन हमें सब कुछ मालूम है कि द नेगेटिव आयन विल ऑल्सो पोलराइज द पॉजिटिव आयन, बट सिंस एनायंस आर यूजुअली लार्ज, ज्यादातर एनायंस क्या होते हैं, लार्ज ही होते हैं, right? Usually large. So and cations are small. So the effect of a large ion on a small ion will be much less pronounced. ठीक है, वो जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले पे इतना जोर नहीं लगा सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये डिस्टॉर्शन है ना वो दिख रहा है। So if the degree of polarization is quite small, देखिए ये खिंचाव नहीं करेगा तो इसका मतलब कि लिथियम और आयोडीन के बीच में एक अट्रैक्शन है, तो बॉन्ड क्या होगा, आयोनिक ही होगा, लार्जली आयोनिक होगा। बट इफ द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज लार्ज, यहाँ पे वो खींच रहा है अपनी तरफ, तो उसने शेयरिंग की थोड़ी प्रोसेस की तरफ वो चला गया है। उसका तो अपना इलेक्ट्रॉन था ना आयोडीन का, तो ये इलेक्ट्रॉन लिथियम और आयोडीन के बीच में आ गए हैं, यानी इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो गया है। सो इफ द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज लार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव आयंस टुवर्ड्स टू द पॉजिटिव आयंस, so resulting in high concentration of electron between these two nucleus and a large degree of covalent character that we have to see। तो इसमें थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। आपको ये भी क्वेश्चंस होगा, मुझे पता है मुझे क्या करना है, क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना उससे तो मैं ज्यादा से ज्यादा डेप्थ में क्योंकि मेरा थोड़ा नेचर भी ऐसा है, और मैं इसलिए भी सोच रहा हूं कि आप सभी लोग 11th और 12th में आए हुए, साइंस आपने ऑप्ट किया हुआ है, यानी जो बी ग्रुप के बच्चे हैं उसका जो गोल है वो नीट है, और ए ग्रुप के बच्चे को भी अपनी तरह से जैसे उसको JEE भी देनी है, उसको बिट्स की भी एग्जाम देनी है, यानी कई तरह की वो जो एग्जाम्स है वो भी अपनी तरह से प्रिपेयर करना चाहता है, तो उसको ये पता होना चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो पॉइंट है बिल्कुल छोटा है? नहीं, आप फ्यूचर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे S ब्लॉक P ब्लॉक पढ़ेंगे ना, तो उसमें कई बार ऐसा आएगा, ये फजान्स रूल की वजह से ही आप पढ़ पाएंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फजान्स रूल क्या होता है, ठीक है। सो दिस एक्सटेंड्स टू विच डिस्टॉर्शंस अकर, यहाँ पे कब डिस्टॉर्शन होगा, तो विच इज ऑन द पावर ऑफ एन आयन टू डिस्टोर्ट द अदर आयन, यानी इसका पोलराइजिंग पावर है, तो इसने उसका किस तरह से डिस्टोर्ट किया है। तो उसमें देखो ये डिस्टॉर्ट होने की दो वजह है, इसका छोटा साइज है और इसका बड़ा साइज है, इसलिए ये डिस्टॉर्ट हो रहा है। क्योंकि क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है वो यहाँ के जो पास वाले इलेक्ट्रॉन पे वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो उसका जो अपना जो उसका जो ग्रिप है, वो जो उसको अट्रैक्शन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, इसी वजह से वो इस तरफ मूव हो रहे हैं, ठीक है। सो ऑल्सो once again the extent to which ion distortions occur on the power of ion to distort the other ion, so and also on how susceptible the ions is distortions, means उसकी polarizability कितनी होगी ये भी हमें देखना चाहिए, ठीक है। सो ज्यादा से ज्यादा ये जो मैंने यहाँ पे वर्ड किया हुआ है पोलराइजेबिलिटी, वो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एनायंस पे अप्लाई हो रहा है, बिकॉज द
polarizability of a negative ion is greater than that of the positive ion, since the electrons are less firmly bound because of the difference in the effective nuclear charge. So large negative ions are more polarizable than small ones. ठीक है, आपको मैंने अभी उसका जो रूल्स में अभी मैंने गया हूं, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि आपको कौन सी टर्म पे जाना चाहिए. पहले मैं फिर से आपको यहाँ पे आपको ये याद दिला दूं, आपको ये फजान्स रूल कब अप्लाई करना है. ठीक है, पहले आप देखिए प्रिंसिपल मैटर क्या है. द प्रिंसिपल मैटर है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द आयोनिक बॉन्ड, हमें पता है ये बॉन्ड आयोनिक है, लेकिन अभी हमें ये ढूंढना है इसमें कि इन दिस आयोनिक बॉन्ड हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ अ कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. जब भी आपका ये मोटो हो, जब भी आप ये देखना चाहते हो, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज अ फजान्स रूल. ठीक है, फजान्स रूल में जैसे हम जाएंगे तो आपको दो क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में जा रहे हैं, तो आयोनिक बॉन्ड में तो केटाइन होते हैं, एनाइन होते हैं. तो केटाइन का क्या होता है, पोलराइजिंग पावर होता है, यानी वो दूसरे को कितना पोलराइज कर रहा है उसका पावर. तो वो जितना छोटा होगा उतना वो दूसरों को पोलराइज करेगा. और एनाइन की क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी होती है, यानी उसका डिफॉर्मिंग कितना होता है, तो वो उसका शेप होता है, उसकी साइज होती है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है. लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी अभी मैंने क्या बताई है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इस तरह से हम दिखा रहे हैं कि लार्ज नेगेटिव आयंस, जैसे मैंने यहां पे दिखाया हुआ है, आर मोर पोलराइजेबल देन द स्मॉल वंस. ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया है. अभी जो उसके 4 पॉइंट्स यहां पे दिखाए हैं, मैं थोड़ा आज इसमें आपके साथ ज्यादा भी बात करना चाहता हूं. तो उसमें जो 4 पॉइंट्स है, सो फजान्स पुट्स ऑल 4 रूल्स forwarded which summarize the factors favoring the polarization and hence covalency. तो वो covalency की तरफ चला जाएगा. So हमें फर्स्ट ये दिखाना है कि a small positive ion favors covalency. ठीक है, जो सबसे छोटा पॉजिटिव आयन होता है वो कोवेलेंसी की तरफ फेवर करता है. कोवेलेंसी का मतलब यहां पे होता है कि आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर को वो फेवर कर रहा है. क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए आप देखिए तो इन स्मॉल आयंस होगा, जैसे जितना भी, जैसे लिथियम है वो स्मॉल आयंस है, राइट. तो स्मॉल आयंस में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो उसका होता है, पॉजिटिव चार्ज मींस जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, विच इज concentrated over a small area. क्योंकि उसका एरिया स्मॉल है तो पूरी तरह से वो अपना पूरा नेटवर्क लगाएगा. सो स्मॉल एरिया के ऊपर उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है. सो उसके हिसाब से क्या होगा, सो दिस मेकिंग द आयन हाईली पोलराइजिंग. आपको कुछ पता चला मैंने क्या बताया है. देखिए जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होंगे ना, वो ये जो मैं बता रहा हूं ना उसमें से वो 2-4 बात ढूंढ लेंगे. एक बात तो है कि उसका जो स्मॉल आयंस है, और दूसरा उसका पॉजिटिव चार्ज है ना, यही सभी हरकत के लिए जिम्मेदार है. यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो भी उसका पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, और साइज स्मॉल होगी तो भी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा. ये आपको दोनों पॉइंट्स यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे. सो दिस मेकिंग द आयन हाईली पोलराइजिंग एंड वेरी गुड एट डिस्टॉर्टिंग द नेगेटिव आयन. तो वो नेगेटिव आयन को अच्छी तरह से डिस्टॉर्ट कर सकता है, क्योंकि उसका अपना तो नेटवर्क चल रहा है और ये नेटवर्क उसने दूसरे पर भी चलाया हुआ है. ठीक है, तो दे डिस्टॉर्टिंग द नेगेटिव आयन. ओके, फाइन. सो द हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्मॉल कैटायन distorts the electron cloud of the anion to such an extent that these electron clouds of the anion and the cation are overlapping. यहाँ पे ओवरलैप हो गया है. देखिए ये जो दोनों क्लाउड है तो वो ओवरलैप हो गए, सो मेकिंग द बॉन्ड रिजेंबल लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं. वंस अगेन, दिस हाई चार्ज डेंसिटी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, दिस हाई चार्ज डेंसिटी of the small cation
ये जो छोटा वाला कैटायंस होता है, राइट, विच डिस्टॉर्ट्स, ओके, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड of the anion to such an extent that the electron clouds of the anion, ठीक है, आपको यहां पे पता चल गया, and the cation ओवरलैप, वो ओवरलैप होने की वजह से, ओवरलैप का मतलब यहां पे आपको समझ जाना चाहिए कि कोवेलेंट की तरफ वो जा रहा है, मूव हो रहा है. सो मेकिंग द बॉन्ड रिजेंबल अ कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, मैं अभी तो फजान्स रूल की तरफ से ही चल रहा हूं, मैंने अभी अपना कुछ डाला हुआ नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस भी उसमें अभी आपके साथ शेयर करूंगा. ठीक है, जैसे दूसरा पॉइंट है, A large negative area favors covalency. तो मैंने वही बोला था, a large negative area, right, or ion favors, right, covalency. So large, जैसे मैंने अभी बोला, large ions are highly polarizable. जैसे जितना बड़ा आयंस होता है ना, वो इतना ज्यादा से ज्यादा पोलराइज हो सकता है. ठीक है, सो दैट इज easily distorted by the positive ion. क्यों? इसका रीजन क्या है? because the outermost electrons, जो इसका outermost electrons होता है, they are shielded with the help of screening effect or shielding effect from the charge on the nucleus by filled shells of electrons. देखिए यहां पे क्या आता है, जैसे मैंने आयोडीन दिखाया हुआ है, तो आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप जैसे देखेंगे, मुझे मालूम है, आपको सभी को पता है कि भाई ये आयोडीन है, उसका एटॉमिक नंबर है, आप इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे लास्ट में आएगा NS2NP5 आएगा, राइट, सभी को पता है. लेकिन यहाँ पे जो अंदर है ना, वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस हो गया है. तो जैसे वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस का वो सील्ड बना देंगे, यानी जो ये न्यूक्लियस का जो चार्ज पूरी तरह से सभी एरिया में लगना चाहिए, उसके बजाय वो इतने छोटे एरिया में ही लगेगा, क्योंकि उसने सील्ड कर दिया है, उसने ये यहाँ पे कवच बना दिया है, तो उससे ज्यादा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ तक उसका कंट्रोल नहीं हो पाएगा. इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह से न्यूक्लियस से जुड़े हुए नहीं है. तो ये वाले को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अच्छी तरह से अपनी वो पकड़ में ले लेते हैं और उसका जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड करके उसका पोलराइजेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है. लार्ज नेगेटिव एरिया फेवर्स द कोवेलेंसी. लेकिन यहाँ पे हमारी बुक में क्या है कि सिर्फ छोटा छोटा वाला लिखा हुआ है, लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट वो उसने बताया नहीं है. देखिए थर्ड वन, लार्जर और लार्ज चार्जेस ऑन आइदर आयन और on both ion favors कोवेलेंसी. ठीक है, आपने देखा जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिथियम लिया हुआ है ना, मैं ऐसे इस तरह से बेरिलियम लूंगा तो उसका चार्ज ज्यादा हो गया,
क्योंकि बेरिलियम में तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है तो क्योंकि एक तो साइज कम हो गया है, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, तो वो पूरा अपना एरिया तो कवर करेगा ही, राइट। वो तो द हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्मॉल कैटायन वो तो अपने तरह से तो वो चलेगा ही, लेकिन वो उसने क्या किया है, नेगेटिव आयन पे भी अपना इंपैक्ट डालेगा। सो लार्ज चार्जेस ऑन आइदर आयन ऑन और ऑन द बोथ आयंस फेवर कोवेलेंसी, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे मैं इस तरह से बता रहा हूं, हाई चार्ज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पोलिमराइजेशंस। ओके, फोर्थ पॉइंट, पोलराइजेशंस। देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पोलराइजेशन एंड हेंस कोवेलेंसी, कोवेलेंसी is favored if the positive ion does not have a noble gas configuration। यहां इसलिए बता रहा है कि पोलराइजेशन से ना वो कोवेलेंसी को फेवर कर रहा है, लेकिन ये जो कौन से जो दिस पॉजिटिव आयन डज नॉट हैव अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। इसका मतलब है ये है कि एग्जांपल्स ऑफ आयंस व्हिच डू नॉट हैव अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस इंक्लूड अ फ्यू मीन ग्रुप एलिमेंट, जैसे मैंने थेलियम बता रहा हूं, लेड +2 बता रहा हूं, Bi+3 है, मेनी ट्रांजिशंस एलिमेंट्स है जैसे Ti+3 है, V+3 है, Cr+2 है, Mn+2 है, Cu+1 है, एंड सम lengthened metals such as Ce+3, Eu+2, right? So a noble gas configuration is the most effective at shielding the nuclear charge. So ions without the noble gas configurations will have a high charge at their surface and thus be highly polarizing. आपको ये जो पॉइंट्स है वो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि जो आयंस है जिसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था Tl+1, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है Pb+2, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है Bi+3, राइट। दूसरे किसी ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे टिटेनियम+3 है, वेनेडियम+3 है, Cr+2 है, मैंगनीज+2 है, Cu+1 है, ओके। एंड सम लेंथेनोड्स मैं दिखा रहा हूं आपको, सीरियम है, जैसे ये Eu+2 है। सो ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए हुए हैं उसमें क्या है कि उसमें नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है, okay, so a noble gas configuration is the most effective at the shielding the nuclear charge. So ions without the noble gas configuration will have a high charges at their surface. So they thus वो क्या होगा, ये जो मैंने बताया ना वो अपना इतना हाई चार्ज करके रखा हुआ है कि वो जो सामने वाले एनायंस होंगे ना उसका पूरा डिस्टॉर्ट करने की उसमें टेंडेंसी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं। अभी देखिए ये तो मैंने जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाले हुए थे वो मैंने अपनी बुक की तरफ से, जो बुक है उसमें मैंने डिटेल्स में जाके आपके साथ बात की। अभी कई बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर जी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरा जो मेन इंटेंशन है ना ये तो मैंने प्योर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अभी उसका अप्लाइड वर्जन क्या होगा, मैं देखिए अप्लाइड वर्जन किस तरह से मैं यहाँ पे आपको थोड़ा अपना एंगल में डाल रहा हूँ, राइट। ये मेरा अपना एंगल है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फजांस रूल की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको ये लगता है ना कि सर जी कंपाउंड आयनिक होते हैं, इसमें कितनी कोवेलेंसी है ये ढूंढने के लिए, ठीक है, बराबर है। लेकिन आप पहले देखिए मैं अपनी तरह से बात कर रहा हूं, जैसे मेरे पास आयोनिक कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट्स है, उसके मेल्टिंग पॉइंट्स है, राइट, फिर उसकी सॉल्युबिलिटी है, फिर उसकी थर्मल स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी वो बिल्कुल बढ़िया होती है क्योंकि आयनिक बॉन्ड है। सभी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं, सॉल्युबिलिटी भी अच्छी होती है, राइट, थर्मल स्टेबिलिटी भी बहुत बढ़िया होती है। लेकिन उसके विपरीत आप यहाँ पे कोवेलेंट में देखिए इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहे हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है जैसे कोई आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर घुस जाता है। जैसे मैंने अभी होता है छोटे वाले एनायन और बड़े वाले एनायन,
राइट, यानी केटाइन है, इसमें मैं क्या बता रहा हूं, जो केटाइन है वो क्या है, स्मॉल है, और एनाइन है वो क्या है, लार्ज है। तो क्या होगा, इससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसका बढ़ेगा, तो वो अपनी तरफ से खींचाव करेगा। तो मैंने ये एक भी बात आपको बताई थी। ठीक, अभी आपको यहाँ पे नहीं है, लेकिन जैसे जो बच्चे JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, तो उसमें ये पॉइंट उसको अच्छी तरह से दिखा रहा है कि इसको पोलराइजिंग पावर मैंने अभी दिखाया। पोलराइजिंग पावर किसका होता है, केटाइन का। उसका एक सिंबल भी है 5, राइट, ये केटाइन के लिए चल रहा है। तो वो जितना बढ़ेगा इतना कोवैलेंट नेचर उसका बढ़ेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसका एक फॉर्मूला है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, आयोनिक पोटेंशियल। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला है चार्ज अपॉन रेडियस। जैसे लिथियम का चार्ज क्या है, +1, और उसका रेडियस, लेकिन बेरिलियम होगा तो उसका क्या होगा, चार्ज भी बढ़ेगा और रेडियस भी कम होगा, तो इसका 5 बढ़ेगा तो कोवेलेंस नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, जैसे चार्ज बढ़ रहा है, रेडियस कम हो रहा है, यानी उसका कोवेलेंट नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बराबर है, एकदम बराबर है, आपको समझ में आ गया। ओके, और जो दूसरा टर्म्स मैंने यहाँ पे यूज किया था वो था पोलराइजेबिलिटी था, लेकिन ये जो पोलराइजेबिलिटी है, राइट, आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो किसके लिए होती है, फॉर एनाइन के लिए होती है। जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी उतना कोवैलेंट नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो, इतना तो आपने समझ लिया है। अभी मैं आपको कहां पे, जैसे जो JEE और नीट में कहीं ऐसे अच्छे क्वेश्चंस डाले गए हैं, तो मैं इसके लिए आपके साथ बात करना चाहता हूं। जैसे मेरे पास सोडियम ब्रोमाइड है और आपको पूछा ये जा रहा है एल्यूमिनियम ब्रोमाइड है, ठीक है, आपको ये पूछा गया है इस दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट, मैं तो पहले बहुत लोअर लेवल से अपनी बात करूंगा कि किसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, राइट, वो ज्यादा है और किसका कम है। तो हमें पता है इसका ही ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें पूरा आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिख रहा है, राइट। इसमें क्या है, Al+3 में चला गया है। देखिए, दोनों में ब्रोमीन तो कॉमन है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, इसमें Na+ है, Al+3, इसका चार्ज भी क्या है, ज्यादा है, और उसका रेडियस कम है, यानी इसका 5 ज्यादा हो जाएगा। 5 ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी बढ़ जाएगी। तो उसका जो है ना, हम ऐसे दिखा रहे 775 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और उसका 97.5 डिग्री ही उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अब जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। मैंने एक आपको एग्जांपल, जिससे एक और एग्जांपल्स है मैं दिखाता हूँ। ये जो सभी है ना वो पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास CaF2 और Ci2 दोनों आयोनिक बॉन्ड है, लेकिन इसमें कोवैलेंसी किसमें ज्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो डेफिनेटली CaF2 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों में कैल्शियम तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव आयन है उसकी साइज बढ़ गई है। इसकी साइज बढ़ने की वजह से उसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया है। ऐसा मैं एक और दिखा रहा हूं आपको, मेरे पास है BeCl2 और BaCl2 में बता रहा हूं आपको मालूम है बेरिलियम के नीचे क्या होता है, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और उसके नीचे बेरियम, ये एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। तो मुझे पता है कि BeCl2 में ज्यादा उसका कोवैलेंट नेचर है, इसमें ज्यादा कोवैलेंट नेचर है। देखिए, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेरिलियम+2 है और वहां पे बेरियम+2 है। ये जो आपका जो केटाइन है उसका साइज क्या है, तो इसका साइज स्मॉल है, इसका साइज बहुत बढ़िया है। दोनों में क्लोरीन तो कॉमन है, तो ये छोटा वाला है, तो वो पूरी तरह से अपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाएगा अपने एरिया में, और सामने वाले एरिया में भी वो लगाना शुरू करेगा। तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसका पोलराइजिंग पावर क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। तो ये जो है इसमें कोवैलेंट नेचर ज्यादा है और उसमें कोवैलेंट नेचर क्या है, कम है। तो आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। और इसका जो सभी लोग पढ़ रहे हैं कि सर जी हमें फेजांस रूल क्यों पढ़ रहे हैं, मैं फेजांस रूल इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि उसकी आपको ज्यादा से ज्यादा जरूरत यहाँ पे पड़ेगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है मैग्नीशियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम फ्लोराइड,
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें N-3 है और उसमें F-1 है, राइट। तो इसमें से ज्यादा आयोनिक कौन है? देखो क्वेश्चंस किस तरह से, ये ज्यादा आयोनिक है, ये ज्यादा आयोनिक है। क्यों आयोनिक? मींस इसमें कोवेलेंट नेचर है। क्यों? N-3 है, राइट, N-3 है और F-1 है। दोनों के साइज में इसका साइज थोड़ा बड़ा वाला है, दोनों में मैग्नीशियम तो कॉमन ही है, तो आपको पता चल जाना चाहिए। इस तरह से मैं यहाँ पे और भी एक दिखा रहा हूं, मेरे पास है सोडियम कार्बोनेट और दूसरा मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बॉन्ड है ना, इसमें आयोनिक है, इसमें थोड़ा कोवैलेंट नेचर है, दोनों में कार्बोनेट कॉमन है। लेकिन सोडियम के बजाय कैल्शियम में आप जैसे चले जा रहे हैं तो उसका क्या होगा? तो कि उसका सोडियम के बजाय यहाँ पे चले जाएंगे तो उसका कोवैलेंट नेचर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका साइज है ना कम है, कैल्शियम का साइज ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा, इससे इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या होगी? बहुत बढ़िया होगी। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई, बराबर। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी की वजह से भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं एक और क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे पास है बेरियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा मेरे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बेरियम और मैग्नीशियम, मैंने अभी बोला दोनों एक ही फैमिली में आ रहे हैं, तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? तो देखिए बेरियम +2 है ना, उसका साइज Mg+2 से अच्छा है। जिसका साइज बढ़िया होगा तो आयोनिक की तरफ चला जाएगा, क्योंकि केटाइन जितना बड़ा इतना उसका आयोनिक नेचर ज्यादा हो जाएगा, तो उसका आयोनिक नेचर ज्यादा हो गया है। तो इसका मतलब कि इसकी सॉल्युबिलिटी है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं सॉल्युबिलिटी की, मैंने मेल्टिंग पॉइंट की भी बात की, मैंने बॉइलिंग पॉइंट की भी बात की, मैंने वो थर्मल स्टेबिलिटी की बात की। तो उस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा है और कौन सा नहीं हो सकता है। देखो मैं अभी लास्ट में एक थोड़ा अपना जैसे गुगली डाल रहा हूं। एक मेरे पास कॉपर क्लोराइड है और मेरे पास सोडियम क्लोराइड है। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर +1 है और यहाँ पे Na+1 है। इसकी साइज कम है, देखिए पहले एक तो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर ये जो है ना वो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, यानी वो आर्गोन 3d10 की तरह से दिखेगा, यानी उसमें पुअर शील्डिंग है, पूरा शील्डिंग लगाया हुआ नहीं है, पुअर शील्डिंग है। इसलिए उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इससे इसका पोलराइजिंग पावर जिसने हमने बताया वो भी बढ़ जाएगा, यानी इसमें कोवैलेंट नेचर बढ़ जाएगा, यानी ये जो बॉन्ड है वो ज्यादा आयोनिक है, ये कम है। तो इस तरह से तो मैं कहीं एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन अब जैसे S ब्लॉक और P ब्लॉक पढ़ेंगे तभी आपको ये मालूम हो जाएगा। इन शॉर्ट मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें फजान्स रूल तब लगाना है जब हमारा बॉन्ड आयोनिक है और उसमें हम कोवैलेंट ढूंढना चाहते हैं कि हाउ मेनी % ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो डेफिनेटली मुझे आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।